अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं सब? तमाम लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको खुश रखें, खैरियत तो आफियत से हूँ। चलेंगे, दिस इज रिसर्च मैथडोलॉजी फॉर 6 semesters, BS for session 2024. If you remember, we have discussed research definition, what it is, and then key characteristics of research. If you remember, research is a systematic and methodical process of inquiry aimed at discovering, interpreting, and expanding knowledge in any particular field of study. And we discussed that in every field, research exists. And that is the benefit of research, that every field of study or every knowledge is expanded. All right. And the key characteristics of research include systematic inquiry, that research has to be systematic. एक organized approach होती है, एक organized और systematic way में एक specific topic पे आप काम करते हैं. Objective investigation होती है, that is not the desire of your own, or that's not subjective, it does not involve your own likings and dislikings. It's away from preconceived notions. Empirical evidences होना जरूरी है. ऑब्जेक्टिवली चलती है रिसर्च, इसमें आपको जो कलेक्शन ऑफ डेटा है उसी के जरिए आप रिजल्ट ड्रॉ करते हैं और वही आप सामने रखते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी. क्रिटिकल एनालिसिस, यू इन्वॉल्व क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस टू इवैल्यूएट एग्जिस्टिंग नॉलेज. आइडेंटिफाई करते हैं गैप और फिर उस पर काम करते हैं. एंड दैट इज एट द एंड व्हेन योर रिजल्ट कम्स, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज. रिसर्च एक पूरी बॉडी है, उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं. वॉट एवर द वर्क एंड रिजल्ट कम्स टू अस, दैट इज अ कंट्रीब्यूशन. Overall, research is a systematic and rigorous process of inquiry that seeks to generate new knowledge, extend understanding, and contribute to the ongoing development of human knowledge and understanding. It plays a critical role in academic disciplines, scientific endeavors, policy formulation, decision making. हमारे across global, we can see that everywhere around us, we can find different role of research in all the disciplines. और ये रिसर्च ही है जिसमें हम पॉलिसीज भी बनाते हैं, जिसकी बेस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिसकी बेस पे हम चीज़ें नहीं लाते हैं, पुरानी चीज़ें ले जाते हैं. थियरीज कहाँ से डेवलप होती हैं, एक्सप्लेनेशंस कहाँ से मिलती हैं, on the basis of all research. All right. Now coming to research methodology. Research methodology refers to the systematic framework or approach that guides the process of conducting research. देखिए, method and methodology, you must try to understand the difference. मेथड तो किसी एक चीज का मेथड है और वो एक ही चीज है. फॉर एग्जांपल, हम ये काम किस मेथड से करते हैं जी, हम इस मेथड से करते हैं. बट व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट मेथड, कि ये मेथड चलते कैसे हैं, एंड डेफिनेटली देयर इज नॉट ओनली वन मेथड दैट इज कंसर्न और रिलेटेड टू रिसर्च, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स. उन सारे मेथड्स को जब आप स्टडी करते हैं वो कहलाता है मेथडोलॉजी. मींस स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेथड्स. That refers to systematic framework, and it encompasses theoretical principles. के जो theories हैं, explanations हमें जो पहले दी हुई है, उनके क्या principles हैं, क्या methods हैं, कौन सी techniques किस situation में use हुई हुई हैं, और कौन सी procedures हैं used by researchers to design, conduct, analyze and interpret their studies. मुख्तलिफ studies होती हैं, उनको कैसे किया गया है और कौन से रिसर्चर्स ने उनको किस तरह कंडक्ट किया है, ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च methodology बताती है. Research methodology provides a systematic way to address research questions, gather relevant data, and draw meaningful conclusions. If you remember, in the very beginning, in the very start of the lecture, I mean lecture number 1, we discussed that in research there are 2 or 3, 4 main things. आपको बताया था कि इसमें आप जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं सबसे पहले, फिर एक सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके ऊपर आप कोई ऑब्जर्वेशन करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं, रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं और फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं. तो दीज आर 5 बेसिक थिंग्स. अब वो सारे बेसिक थिंग्स जो है हम सिस्टमेटिक वे से एड्रेस करेंगे. जो भी रिसर्च क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप रिलेवेंट डेटा ड्रॉ करेंगे और फिर मीनिंगफुल कंक्लूजन्स लाएंगे. ये सब एक तरतीब भी होगा, ऑर्डर में. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं. नंबर 1 इज रिसर्च डिजाइन. देखिए, वट एवर थिंग वी मेक, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो उसका कोई डिजाइन जरूर होता है. इसी तरह रिसर्च की स्टडी का भी एक डिजाइन होता है. हमें डिजाइन के काफी सारे डिजाइन ऑलरेडी मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स ने ड्रॉ किए में. हमारे पास एक तरह से बुफे है जिसमें काफी सारे डिशेस ऑलरेडी मौजूद है. हम जाकर वो टेस्ट करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है और जो हमें सूट करता है वो हम उसमें अडेप्ट करते हैं, जो हमारी रिसर्च की ऑब्जेक्टिव से मैच करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने चेयर बनानी है.
अब चेयर बनाने का मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है जनाब? ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसी कोई चीज, ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर बैठा जा सके, वो कंफर्ट भी दे, उसकी हाइट भी प्रॉपर हो, उसके ऊपर बैठ के मैं ये काम कर सकूं, तो यानी ये मेरा ऑब्जेक्ट है उस चीज को बनाने का। तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मार्केट में ऑलरेडी कुछ काफी एक्सपर्ट्स के काम हुए हैं और उन्होंने कुछ डिजाइन ऑलरेडी तरतीब दिए हैं। अब मैं जाकर, क्योंकि मुझे स्टडी की चेयर चाहिए तो इस हाइट की चाहिए होगी, रॉक चेयर चाहिए, आराम करने वाली चेयर चाहिए, आर्म चेयर चाहिए, या कि बच्चे के लिए वो झूले के पर्पस के लिए चाहिए, तो वो सारी किस्म की चेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अब मैं जाती हूँ मार्केट में, उसमें जहाँ पर मार्केट में थोड़ा सर्वे करके अपनी पसंद और अपनी मुताबिकत की चेयर पिक करती हूँ और उसको ले आती हूँ। इसी तरह रिसर्च डिजाइन भी हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी ऐसे समझे आप, उसकी पूरी मार्केट है जिसमें डिफरेंट डिजाइन हैं। अब जाकर आपको सर्वे करना होता है, पढ़ना होता है, जाकर मालूमात करनी होती है कि रिसर्च डिजाइन कौन कौन से मौजूद हैं और मेरी स्टडी में कौन सा रिसर्च डिजाइन फिट होगा। सो दिस इन्वॉल्व्स द ओवरऑल प्लान। होता क्या है रिसर्च डिजाइन? एक ओवरऑल प्लान है, पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा मैप है जो आप जहन में बनाते हैं, इंक्लूडिंग सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथड्स, कि मैं डेटा कलेक्ट करूंगी तो किस मेथड से करूंगी, डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स होंगी, टूल्स होंगे तो मेरे पास कौन से होंगे, मैं आया बच्चों से इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चंस लूंगी, या कि उनको मैं इंटरव्यू करूंगी, या कि मैं क्लासरूम को जाकर ऑब्जर्व करूंगी, या मैं लिटरेचर पर कर रही हूँ तो मुझे कुछ चीजें उठाकर पढ़नी पड़ेंगी, टेक्स्ट को देखूंगी, कुछ पुरानी या कुछ रिलेटेड और चीजें हैं तो उनको निकाल कर मैं टेक्सचुअल एनालिसिस के जरिए टेक्निक को फॉलो करूंगी और एनालिसिस प्रोसीजर्स, और फिर बाद में उनको रिजल्ट्स कैसे ड्रॉ करूंगी। तो ये सारी चीजें हमें डिजाइन बताता है। डिजाइन के अंदर ये ओवरऑल सारी प्लान्स मौजूद होते हैं। कॉमन रिसर्च डिजाइन इंक्लूड, और कॉमन रिसर्च डिजाइन क्या है? एक्सपेरिमेंटल, ये लिटरेचर से ज्यादा लिंग्विस्टिक्स में काम आएंगे। कोरेशनल, कोरिलेशनल, यानी दो चीजें आप एक साथ उठाते हैं कि अगर मैंने ये काम किया तो उसके इफेक्ट के तौर पे मेरे सामने ये आए। अगर मैंने बच्चों पे ये वाला मेथड अप्लाई किया तो उसका इफेक्ट ये पड़ा है कि बच्चों ने स्पीकिंग कम कर दी है या ज्यादा कर दी है, या उनकी रीडिंग पावर बढ़ गई, या उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, या उनकी स्पीकिंग की एंजाइटी थी तो बच्चों को मैंने थोड़ा रिलैक्स छोड़ दिया, तो वो मुख्तलिफ चीजों को आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया या उनको रिलेट कर लिया। डिस्क्रिप्टिव, कोई ऐसी चीज ऑलरेडी मौजूद है, आपने सिर्फ डिस्क्राइब किया उनको। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ मेथड ऐसे जा रहे हैं, चला आपने सिर्फ उसको उठाया और डिस्क्राइब किया। क्वालिटेटिव डिजाइन्स, कुछ क्वालिटेटिव डिजाइन्स हैं, बातचीत करके आपने कुछ क्वेश्चंस का फॉर्म आंसर्स निकाले हैं। ईच सूटेड टू डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, आई टोल्ड यू। जैसा आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होगा, जी मैं रिसर्च अपनी करने जा रही हूँ, मेरा मकसद ये है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है, और फिर उस ऑब्जेक्टिव के हम बनाते हैं क्वेश्चन कि जी आया। फॉर एग्जाम्पल आप उठाते हैं लिटरेचर, लिटरेचर में आपने कुछ राइटर्स पढ़े हो, मुमकिन है ड्रामा पढ़ा है फॉर एग्जाम्पल, कि ये इस वक्त का ड्रामा पिछले वक्त से, ये शेक्सपियर का वक्त जो है उस वक्त में ड्रामास बहुत ज्यादा फेमस थे। फॉर एग्जाम्पल एलिजाबेथन पीरियड जो है वो दैट वाज वेरी मच फेमस फॉर इट्स ड्रामास, राइट। इसी तरह आपने एक शेक्सपियरियन ड्रामा लिया, उसके बाद आप गए जी सोफोक्लिस, एंशंट ग्रीक जो है उनके ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत मशहूर थे, उनमें आप दोनों में आपस में क्या कंपैरिजन है या क्या डिफरेंस है, ये चीज आपका ऑब्जेक्टिव है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिप्टिव लेना पड़ेगा, फिर आप टेक्सचुअल एनालिसिस की तरफ जाएंगे, कुछ उनकी चीजें उठाएंगे, उनको कंपेयर करेंगे, कुछ पुरानी चीजें जो एंशंट ग्रीक के आप उठा रहे हैं, सोफोक्लिस का डिबस रेक्स उठा लिया, उन दोनों को उठाकर आपने मैच किया। तो जैसा आपका ऑब्जेक्टिव है आप उसी हिसाब से रिसर्च डिजाइन सूट करते हैं, ऑप्ट करते हैं। काफी सारे रिसर्च डिजाइन मौजूद होते हैं, ये हमें स्टडी से पता चलता है विच वन मे बी सूटेबल फॉर मी, और ये फिर आप स्टडी करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो आपको बताती है रिसर्च मेथोडोलॉजी कि ये डिजाइन आपके लिए ये वाला अच्छा है, और ये इस वजह से, इसमें अच्छे होने की अट्रैक्शन नहीं होती कि जी मुझे अच्छा लग रहा है, इसका नाम मुझे बड़ा अच्छा फील कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल तो मैं एक्सपेरिमेंटल करूंगा। नो, इट्स ऑब्जेक्टिव, आपके ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपके मकसद को पूरा करेगा या नहीं करेगा, इस चीज को देखते हुए हम इसको ऑप्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है डेटा कलेक्शन मेथड्स। तो रिसर्च मेथडोलॉजी में सेकंड की कंपोनेंट जो है वो है रिसर्च मेथड, आई मीन कलेक्शन मेथड, कि डेटा को आप देखें, जो भी रिसर्च करते हैं वो डेटा पे मतलब डिपेंड करती है। डेटा मीन्स सम इंफॉर्मेशन दैट हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड, प्रोसेस नहीं की आपने, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, फिर रिजल्ट उससे निकालेंगे, अभी सिर्फ आप जस्ट उनको कलेक्ट कर रहे हैं।
ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पे अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ वो कहलाता है डेटा। जब आप उस पर प्रोसेस कर लें तो फिर आप उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी स्पेसिफाई करती है कि कौन सी टेक्निक्स और कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज करें जिससे आप रिलेवेंट रिसर्च क्वेश्चंस के मुताबिक डेटा कलेक्ट कर सकें। डेटा यानी इंफॉर्मेशन। दिस में इंक्लूड सर्वेज, कभी आपको सर्वे की जरूरत होती है। जैसा कि आपने एक कोई रिसर्च सेलेक्ट किया, उसका ऑब्जेक्टिव है कि क्लासरूम में बच्चे जो है वो या एब्सेंट बहुत होते हैं। इंटरमीडिएट की बच्चियां जो है वो बहुत ज्यादा एब्सेंट होती हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर आई मीन नाइन्थ मैट्रिक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, कुछ टीचर्स से जाकर इंटरव्यूज करने पड़ेंगे, कुछ क्लासेस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, या मुमकिन है एक्सपेरिमेंट करना पड़े, या मुमकिन है आर्चिवल रिसर्च यानी कुछ मौजूद डेटा जो रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक करना पड़े, डॉक्यूमेंट एनालिसिस करना पड़े। तो ये सारे मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिनके जरिए आप डेटा को कलेक्ट करते हैं। Choice of data collection method again depends on the factors such as research objectives. Choice data collection की भी वहीं से होगी। आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव समझे कि आपका मेन बैकबोन होता है। जैसा आपने फॉर एग्जांपल ऐसे समझें कि आप किसी पार्टी के लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप पार्टी को नजर में रखेंगे जी। पार्टी अगर कोई ईद पार्टी है, ईद मिलन पार्टी है, या कि कोई अल्लाह ना करे डेथ सेरेमनी है, तो आप उसी के मुताबिक फिर आप तैयार होते हैं, उसी के मुताबिक आपका ड्रेस होता है, उसी के मुताबिक आप चीजें लेती हैं और उसी के मुताबिक आपकी सफर की तैयारी होती है। तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स यानी मकासद क्या हैं, उसी के हिसाब से रिसर्च का डिजाइन, वो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी गाइड करेगी कि डिजाइन कैसा लें आप, और वही आपको गाइड करेगी कि मेथड आप कलेक्शन के मेथड कैसे करें, और पॉपुलेशन कौन सी है, कौन सी अवाम है जिससे आप पूछने जा रहे हैं, क्या क्या पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास कैसे हैं। जैसे कि हम कोई कर रहे हैं, अगर हम लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स के कर रहे हैं और क्लासरूम में है, ईएलटी टीचिंग पर करने के लिए रिसर्च जा रहे हैं, तो फिर हमारी पॉपुलेशन ज्यादातर क्लास टीचर्स, पॉलिसी मेकर्स, हमारे अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारी हमारी पॉपुलेशन होगी। और अगर जो हम करने जा रहे हैं लिटरेचर की तरफ, तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादातर जो होती है वो होती है टेक्स्ट बुक से ही, या फिर कोई एक्सपर्ट्स जो है उनके ओपिनियंस जहाँ से हमें मिल सकें, वो रिसर्च के जर्नल्स भी हो सकते हैं या फिर हमारे अपने कोई बुक्स भी हो सकते हैं, तो वहां से हम अपनी डेटा को कलेक्ट करते हैं। थर्ड होता है सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी। सैम्पलिंग से मुराद ये होता है कि जहां भी जो भी पूरी पॉपुलेशन है आपकी, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी इंटरमीडिएट बच्चियां जो है छुट्टी करती हैं, जैसे हमने आगे सर्वे के लिए यहाँ पे डिस्कस किया था। तो अब इंटरमीडिएट की बच्चियां जो सर्वे करती हैं, तो क्या हम अपना पेन कलम और ये सब उठाएंगे और हमने कहा है जी बलूचिस्तान की बच्चियां हैं तो पूरे बलूचिस्तान के इंटरमीडिएट के पीछे लग जाएंगे और उनसे कलेक्ट करेंगे, पूछेंगे? नो। वो सारा हमारा पॉपुलेशन होगा, उनमें से हम कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे। उन लोगों की सिलेक्शन को कहते हैं सैम्पलिंग, और उनके सेलेक्ट करने के मेथड को कहते हैं स्ट्रेटेजी। सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी यानी पूरी पॉपुलेशन मेरी स्टडी की क्या है, उसमें से आप थोड़ी सी चीजें उठाएंगे, थोड़े से लोग उठाएंगे, या फिर आपकी पूरी पॉपुलेशन कैसी कौन सी है, तो वहां से आप कुछ मेथड लगाएंगे। उस मेथड के जरिए, कई सारे मेथड्स दिए में रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक्सपर्ट्स ने, वहां से हमें पता चलता है कि जी हमें कैसे इनसे किस तरतीब से हमने इसमें से लोग सेलेक्ट करने चाहिए। जैसे हम वोट लेते हैं तो अब वोट तो अब सबसे ले लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई तरतीब होती है जी, वो जिनके पास एनआईसी हो, जिनका नाम दिया हुआ हो नादरा में, और जिनका जो है वो इलेक्शन लिस्ट वालों ने नाम दिया हो, तो ये कोई एक उन्होंने स्ट्रेटेजी के तहत उनको प्लान करके डिवीजन दी हुई है। इसी तरह हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को। रिसर्च मेथोडोलॉजी हमें गाइड करती है, आउटलाइंस द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स के कौन कौन हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट करेगा, कितने टीचर्स हम ले सकते हैं, और कौन कौन से स्टूडेंट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या सैम्पलिंग यूनिट्स फॉर द स्टडी, या फिर हम उनको कितने लोग और किस तरह से सैंपल करें, उनको कितने लोग सेलेक्ट करें हम पूरी पॉपुलेशन से। दिस इंक्लूड्स डिसीजंस अबाउट सैम्पलिंग फ्रेम, पूरे सैम्पलिंग का फ्रेम कैसे दें, उनकी टेक्निक्स कौन सी हों। टेक्निक्स के कुछ नाम है, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग। अपने अपने रैंडम है कि बस आप पूरी क्लास है उसमें से बीच बीच में से आपने 4-5 बच्चे रैंडमली उठा लिए। स्ट्रेटिफाइड बाकायदा आप ग्रुपिंग करते हैं और फिर उसमें से लेते हैं। कन्वीनियंस जो आपको सहूलत में आ रहे हैं आपने उनमें से कुछ लोग ले लिए। तो ये सारे सैम्पलिंग के टेक्निक्स हैं। सैम्पलिंग का साइज कितना हो, फॉर एग्जाम्पल पूरे स्कूल पूरे कॉलेजेस जिनकी बात कर रहे हैं आप, वो हैं तकरीबन 5-7 स्कूल हैं। उन 5-7 स्कूल में इंटरमीडिएट की तकरीबन 7,000 बच्चियां हो जाती हैं। तो फिर उनका साइज कितना होना चाहिए ये आपको, यानी आपको बच्चियां कितनी और स्टूडेंट्स कितने लेने चाहिए।
तो ये हमारा सैंपल साइज रिसर्च मेथोडोलॉजी ही हमें गाइड करती है कि 7000 की पॉपुलेशन टोटल के साथ आपका सैंपल साइज कितना होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चनर की तरफ जा रहे हैं तो आपको 20-30 में ठीक है, सेट हो जाएगा। वरना अगर क्वेश्चनर्स ले रहे हैं, अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट आपने लिया है, तो आपको एटलीस्ट 200-300 सैंपल का साइज रखना पड़ेगा। फिर ये आपकी पॉपुलेशन पूरी उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आपकी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट की जा सकती है इतने सैंपल साइज के साथ। ये सैम्पलिंग प्रोसीजर्स टू इंश्योर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स। देखें, जब हम अपनी स्टडी मुकम्मल कर लेते हैं उस वक्त में हमारे पास फिर एंड में जनरलाइजेबिलिटी बनती है। फॉर एग्जांपल द होल बलूचिस्तान पॉपुलेशन, I for example, if I include the whole, if I talk about the whole of the population of Balochistan, that is around intermediate girls 5000। तो अब मैं अगर उनकी सैंपल साइज में 5 स्टूडेंट सिर्फ लूँ और फिर उनकी बेस पर मैं कोई बात करूँ कि ये स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन का मसला है इसलिए हम कॉलेजेस नहीं आ सकते, तो 5 बच्चियां कहाँ हैं और 5000 बच्चियां कहाँ हैं, आई मीन स्टूडेंट्स। तो 5000 स्टूडेंट्स के माउथ पीस बनाने के लिए आप 5 स्टूडेंट्स को ले लें तो दैट इज नॉट जनरलाइजेबिलिटी या रिप्रेजेंटेटिवनेस। यानी इतना साइज जरूर होना चाहिए कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, 5000 की रिप्रेजेंटेशन दे सकें या 5000 स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी कर सकें। उसके लिए एटलीस्ट 500-300 तक के स्टूडेंट्स को आपने अलग अलग जगह से सेलेक्ट किया हुआ हो, पूरे बलूचिस्तान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लिया हो, या खुजदार की बात करें आप तो फिर खुजदार के अलग अलग स्कूल या कॉलेजेस से आपने एटलीस्ट रैंडमली 5-7 स्कूल या कॉलेजेस को जमा करके उनसे अलग अलग स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए हों सैंपल के तौर पर, तब आप कहेंगे दिस पॉपुलेशन और दिस सैंपल साइज इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेटिव फॉर द होल पॉपुलेशन। पूरे बलूचिस्तान या खुजदार के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा सैंपल साइज, क्योंकि मैंने 500-700 स्टूडेंट्स अपने साथ इंक्लूड किए हैं। तो ये होती है उनकी जनरलाइजेबिलिटी या रिप्रेजेंटेटिवनेस। अब आ जाता है डेटा एनालिसिस, द नेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च मेथड। डेटा एनालिसिस टेक्निक्स क्या होती हैं? देखिए, हमने डिस्कस किया शुरू में, आपने ऑब्जेक्टिव के तौर पे या ऑब्जेक्टिव के हिसाब से या उसकी सूटेबिलिटी के हिसाब से वी हैव सेलेक्टेड अ डेटा, अ डिजाइन, रिसर्च डिजाइन आई मीन। रिसर्च डिजाइन हमने किया, उसके बाद हमने टेक्निक ली, उसके बाद हमने डेटा कलेक्ट किया, डेटा फिर पॉपुलेशन डिस्कस की कि कितने पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, फिर हमने उनसे कुछ जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हुए कुछ डेटा ले ली। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चनर्स यूज कर लिए या इंटरव्यूज के मुताबिक कुछ उनसे पूछा या क्लासेस में जाकर कुछ ऑब्जर्व कर लिया। अब ये सारी ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आ, इन सारी ऑब्जर्वेशन में से अब मुझे क्या चीज उठाकर लेकर आनी चाहिए और किस तरह ड्रॉ करनी चाहिए जो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए रिसर्च का। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का ऐसा एरिया है जो डेटा एनालिसिस टेक्निक्स बताता है। इसमें भी कुछ टेक्निक्स होती हैं बाकायदा, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे आप एनालाइज कर सकते हैं या इंटरप्रेट करते हैं कलेक्टेड डेटा। जो आपने डेटा कलेक्ट कर ली अपनी रिसर्च के लिए, उसमें से फिर आप रिजल्ट कैसे निकाल कर लाएं, ये काम बताता है डेटा एनालिसिस टेक्निक्स। डेटा एनालिसिस टेक्निक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी की वहां पर गाइड करती हैं कि आपने रिजल्ट कैसे ड्रॉ करना है। ये हमारे पास आ गया। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे फ्रूट्स ले लिए, अब फ्रूट से रस निचोड़ कर कैसे हासिल करेंगे, ये चीज है डेटा एनालिसिस टेक्निक। उसका पूरा निचोड़ कैसे लाएंगे, आप उसको कैसे तरतीब देंगे, कैसे निकालेंगे वहां से। दिस में इन्वॉल्व क्वांटिटेटिव मेथड्स, फॉर एग्जांपल स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। कहीं पर आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा हो सकता है कि आपको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस लेना पड़े, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसीज लेकर आनी पड़े, परसेंटेजेस से आपका काम हो, मीन मॉड मीडियन स्कोर ये लेकर आने पड़े आपको, कहीं डेटा माइनिंग करनी पड़े या फिर कहीं हमें मैथमेटिकल मॉडलिंग से रिजल्ट ड्रॉ करना पड़े। ऐसे ही क्वालिटेटिव मेथड्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल थीमेटिक एनालिसिस। जैसे आपके पास पूरी क्लास की ऑब्जर्वेशन आई है, फिर आपने कमेंट्स लिए किसी पार्टिसिपेंट्स के, अब आप उनको थीमेटिक एनालिसिस के जरिए उनसे रिजल्ट्स ड्रॉ करेंगे। उनके थीम्स को एनालाइज करने के बाद उनके कंटेंट एनालिसिस करेंगे या फिर उनकी गुफ्तगू का एनालिसिस करेंगे। वो एक बाकायदा एक तरकीब और तरतीब होती है, वो डिस्कोर्स एनालिसिस करके लाए हम। द चॉइस ऑफ डेटा एनालिसिस टेक्निक्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डेटा, रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च डिजाइन। देखें, वही बात हो गई बार बार कि जी हमने जाना किस पार्टी में है, किस जगह पर, कितने दिन के लिए, उसी के मुताबिक हम अपनी सारी तैयारी करते हैं।